Okay, so first and foremost, we will try to import pandas. Okay, we'll give it a nickname, say P. Hmm. Yeah, so that is done. Now our pandas is imported. Now let's see how many functions do we have. So like if you want, you can like later on you can individually access these functions that are present in pandas library. There are plenty, and yeah, so these are the functions which are available. Okay, now let me click this so that it's collapsible. Okay, yeah. So in pandas, basically the most important thing to understand is how the data is stored. Okay, so when we were talking about NumPy and we were the like the main data type in which the data is stored in using NumPy, or whenever you created a function, sorry, whenever you try to create certain numbers, certain set of numbers uh, using linspace or using a range, the type of data type that was used was NumPy array. Okay, in the same way, when we create data using pandas library, okay, so it's important to know the data type in which the data in pandas library is stored or created. Okay, so that is of the form, like we call it data frame. Okay, we call it data frame. All right, so let's try to create a very simple data frame and see how that is created. Okay, so let's say um, data data equals to pandas ka data frame function. So DATAFRAME. Just a second. Okay, is the sound okay now? Okay, so let's let's create a variable named data. Okay, and we'll use a see. There's a function called data frame. Let me see if it's there. Not visible here. Anyway, yeah, it's there. So data frame, we have this data frame. It helps us create the data that we want. Okay, it will have values, it will have rows, and it will have columns as well. Okay, so let's try to create a data in a form of a table. Okay, we'll make use of the function data frame. ठीक है, because it is a function, it will be followed by parentheses, and in parentheses we will put certain values, okay, that should represent data in tabular form. So one way of doing it is say let me say let's stick to marks, so I'll say physics. Let's give it some marks for 3 students. Okay, so let's make it 65, 79 and 82. Okay, so it's important to note here is that this physics. So let's try to just execute this and see what happens. Okay, that's an invalid syntax. Why is it an invalid syntax? Okay, this has to be, sorry, this has to be in braces. Yeah, now it should not create a problem. Okay, so I simply created, let's see what, is it a row or is it a column? Okay, let's try to show that. Okay, so I have created a column. Okay, in which phy is the name of the column, and 65, 79 and 82 are the elements inside that column. Okay, and on the left of this column you see there are indices 0, 1 and 2. Okay, ये डिफॉल्ट में ऐसे indices आ जाते हैं starting from 0. We can also change that if we want. We can change that by making a small addition to this. Okay,
So what I'll do is I'll write index, okay, and I'll try to give the value of index, say 1, 2, 3. I'll rerun the output. Yeah, so it's now changed to 1, 2, and 3. Can I also change the index to say student 1? Then just a second, let's go minimize. Yeah, student 2 and student 3. Okay, that's done. तो हमारा ये आ गया डेटा जो है ये स्टूडेंट 1 का, स्टूडेंट 2 का एंड स्टूडेंट 3 का हो गया. Let's increase the number of columns. So within the braces, okay, within the braces, I can keep on adding more data. So let's say now I want marks for chemistry, and let's add the marks for chemistry. So 80, 65, and 91, all in brackets. ठीक है, something iterable, because this is a collection. तो जो कॉलम की वैल्यूज हैं we're adding at once. Adding at once का मतलब ये होता है कि it's a collection of numbers या collection of data. तो एक ऐसा डेटा टाइप होना चाहिए जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर पाए. ठीक है, तो that's why it's in brackets. So let's add another column for say math. 95, 93, 77. ओके, आई एग्जीक्यूटेड दैट, रन कर दिया इसको मैंने. डेटा को फिर से रन करते हैं. सो जैसा हमें चाहिए था वैसा हमें डेटा मिल गया. डेटा का अगर टाइप देखें हम, सो वी सी द टाइप ऑफ डेटा, सो इट्स पांडास का कोर फ्रेम, और उसमें क्या है, ये डेटा फ्रेम है. ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ डेटा टाइप दैट वी विल बी हैंडलिंग इन pandas library. Okay, इसको मैं नीचे ले आता हूँ so that it's yeah, ठीक है. तो अभी तक जो मैंने डेटा क्रिएट करा है उसमें कैन वी रिमूव इंडेक्स? Can we remove index? I don't think we can remove index. Let me see if we can. Let's do one thing. Let's see the information and let's go on to the index. Mm, if no index provided, index is used to, let's try one thing. I have not seen कि pandas में जब भी डील कर रहे थे एंड वहां पे इंडेक्स ना आया हो, but let's try something. If that works, let me write here none. No, so that's not working. Let me just write equals to, that's not working. Mm, false. That is also not working. So no, you cannot remove the index. Like there is a default index जो ये क्या करता है कि वो 0 से स्टार्ट करेगा. ठीक है, जैसे इसमें लिखा था ये numpy के a range फंक्शन को फॉलो करता है, तो that starts from 0. तो इसीलिए वो आ रहा है, but you can change the index equals to say 10, 11, 12. ठीक है. अच्छा, what if we have only 2 values instead of 1, instead of 3? So it will say कि mismatch हो गया है, क्योंकि हम जो ऊपर डेटा दे रहे हैं, see the shape of the past values
इस 3/3 इंडिसेस इम्प्लाई 3/2, ठीक है। तो 3/3 का मतलब क्या हो, जो डेटा हम दे रहे थे देखो, 3 कॉलम्स 3 रोज एंड ऐसे में 3 कॉलम्स, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो इंडेक्स दिया है इस हिसाब से केवल 2 ही क्या आ रहे हैं, रोज आ रही हैं। सो वी हैव टू ऐड अनदर, ठीक है, से 12। ओके, सो नाउ देयर इज नो इशू, ये हो गया है। डेटा क्रिएशन में जैसे ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है, उसमें किसी को इशू तो नहीं है? Let me see again if we can remove index. Remove index in pandas. So there is a function for resetting index. Okay, so it's like this. Let me try if this is working. Reset underscore index, and let's do that. ये तो reset हो गया। ओके, तो पहले हमने 10 11 12, ओके नहीं नहीं नहीं, अगेन उसने क्या किया, उसने इंडेक्स एडिशनल ऐड कर दिया। लेट मी ट्राई द कंप्लीट स्टेटमेंट दैट दे हैव गिवन। लेवल इक्वल्स टू नन, drop equals to false, and nothing so far, drop equals to true। तो इंडेक्स उसने खुद का ड्रॉप कर दिया, मतलब जो हमारा इंडेक्स था वो ड्रॉप हो गया और उसने अपना ले आया। तो इन प्लेस करते हैं ट्रू, ओके, इन प्लेस करते हैं फॉल्स। अभी भी देयर इज नो सक्सेस। ओके, तो कॉलम अंडरस्कोर लेवल इक्वल्स टू 0 and column underscore fill equals to empty। Yeah, so nothing। तो आपको जो डेटा फ्रेम दिख रहा है, आई डोंट थिंक यू कैन ड्रॉप द इंडेक्स। जैसे अभी मैंने रीसेट करने की कोशिश करी, बट उसमें भी ये हुआ कि उसने हमारा जो इंडेक्स था वो हटा दिया, बट डिफॉल्ट में एक इंडेक्स आ गया जो डिफॉल्ट में चलता है, ठीक है। सो नो, दैट्स नॉट द थिंग। नाउ लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग, लेट्स ट्राई टू सेव द डेटा, ठीक है। तो सेविंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि व्हाट वी डू इज देयर इज अगेन, ऊपर अगर हम देखेंगे तो देयर इज दिस फंक्शन, सी देयर इज दिस फंक्शन एक्सेल राइटर, ठीक है, दैट हेल्प्स अस राइट अ फाइल and the type of the file is data, ये excel sheets। okay, so there is one question, सर अगर डेटा एक्सेल शीट में हो तो उससे उससे एक्सेस कर सकते हैं? यस, यू कैन एक्सेस दैट डेटा। ओके, यू कैन एक्सेस दैट डेटा, यू कैन बोथ राइट द डेटा टू एक्सेल शीट्स और you can read the data from excel sheets। okay, so there is provision for both। we're dealing with like, so pandas helps us deal with all the excel related tasks। So let's try to see how we can write the data that we have created to an Excel sheet। Okay, so what we have to do first, you have to create a writer। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा राइटर नाम का। सो इट्स लेट्स से राइटर इक्वल्स टू, हमने बोला कि एक्सेल राइटर, विल मेक यूज ऑफ द फंक्शन एक्सेल राइटर, ठीक है। तो पी डॉट एक्सेल राइटर ये तो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको बताना पड़ेगा कि राइट जो करना है वो कैसे करना है, कहाँ करना है, या किस लोकेशन पे करना है आपको एक्सेल को, ये डेटा को इंपोर्ट। सो यू हैव टू गिव द ऑब्जेक्ट फाइल नेम विद पाथ हेयर, ठीक है। तो मुझे डेस्कटॉप पे ही करना है जहां पे मेरी जुपिटर नोटबुक की फाइल है।
तो मैं पाथ ना डालते हुए केवल मैं फाइल का नेम डाल दूंगा, तो एक्सेल अंडरस्कोर आउटपुट, ठीक है, डॉट XLSX, which is the extension of Excel file, XLSX, ठीक है. Now what I will do is I'll write the command to now, no, this writer is created. Now ये writer क्या करेगा, जो भी आप इस writer को दोगे वो excel underscore output dot xlsx नाम की फाइल में डेटा राइट कर देगा, ठीक है. Now this writer object which is created now, इसका टास्क क्या है, जो भी डेटा इसको दिया जाएगा वो इस फाइल में वो लिख देगा, राइट कर देगा, ठीक है. Now what we'll do कि हमारा जो डेटा था वो कहाँ था, डेटा नाम में था, ठीक है. तो दिस डेटा हैज टू बी कन्वर्टेड टू एक्सेल, ठीक है. दिस हैज टू बी कन्वर्टेड टू एक्सेल एंड यूजिंग द राइटर, जिसका नाम एक्सेल राइटर, जिसका नाम है राइटर, WRITER, ठीक है. सो लेट्स अगेन go through the second statement what it is doing, this one. So the first thing that we have written is the data that needs to be converted to Excel, ठीक है, यूजिंग द राइटर, एक्सेल राइटर विच इज नेम्ड राइटर, ठीक है. सो वंस वी एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट व्हाट विल हैपन इज इट विल कन्वर्ट इट टू लाइक द डेटा विल बी written using the writer object on the file excel underscore output, ठीक है. वंस दैट इज डन, सी जब जब भी आप डेटा क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं एक्सेल में, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद जैसे ही आपका काम हो जाता है यू सेव इट, ठीक है. तो उसको हम क्या करेंगे फिर, राइटर डॉट सेव कर लेंगे, ठीक है, एंड द थिंग विल बी डन. लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी इफ देयर इज एनी एरर. So this got executed. Now let me share the entire screen with you. Screen share. Okay, so let's now see what happens. तो अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, so this excel underscore output dot xlsx has been created just now. Let me open this. Okay. So our Excel is created. Okay. Now let me do one thing. Let me add some more data here. Let me add some more data. So say, let's say we have uh, 95. इसको fail कर देते हैं 35. और अच्छा, did you notice something? Excel write हुआ. This is the Excel that you are seeing. Okay, इसको zoom in कर देता हूँ. This is what you see on the Excel file that is saved. Okay, this is what you see on the Excel file that is saved. अच्छा, I'll not show you the program, but याद करो कि हमने program कैसे लिखा था, ठीक है. So do you notice any difference? So will the data be added in Python also from Excel? No, exactly बाबूराव, केम पहले आ गया, ठीक है. So like the order that we followed, let me go back to this data frame. So the order was physics, chemistry and math, ठीक है. द ऑर्डर वाज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ. एंड जब जब हम यहाँ पे भी हम शो करवा रहे थे, लेट्स सी इफ द ऑर्डर वाज द सेम. सो या द ऑर्डर, नो, द ऑर्डर वाज डिफरेंट हियर एज वेल. ओके, सो केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स. कैन यू टेल मी लाइक व्हाई द ऑर्डर इन दिस मैनर? Yes, it's in alphabetical format. Now let's see if we can. Yeah, it's in alphabetical format. Yes. So let's try to do one thing. So I'm adding more data here. Okay. So it's 91. Then let me change the indices also. Student 1 to what? Let me drag down to 3 and 4. So ये हमारे 4 स्टूडेंट्स हो गए. एक और कर लेते हैं. Let's make it 5.
and let's 50, 66 and 49. Okay, so these are the marks. इसको सेव कर देते हैं. ओके, आपके में पहले फिजिक्स आ रहा है. ओके, like uh, have you written the same code and you're getting physics at first? Okay, so we have now, let's assume that we have this Excel file that we have created. Okay, इसको अब हम करते हैं बंद. Let's close this. ठीक है. So अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, how to save Excel to a file. ठीक है, जो Excel फॉर्मेट की है. तो सबसे पहला काम क्या था? To create an Excel writer ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसका काम होगा कि एक्सेल राइट करना. ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, वी रोट द डेटा. ठीक है, वी रोट द डेटा एंड फाइनली हमने यहां पे क्या कर दिया, वी सेव द डेटा. सो दिस इज द ऑर्डर दैट वी फॉलो. वी क्रिएट एन एक्सेल राइटर ऑब्जेक्ट जो लिखेगा, फिर हम लिखते हैं और सेव कर देते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इज विल ट्राई टू अपलोड, we'll try to read a different file. ठीक है, अब different file इसीलिए मैं बोल रहा हूँ because same object में हमने थोड़े changes कर दिए थे. पहले index से 0 1 2. Now what we have done, we have added different indices. We have written student 1 2 3 and we have added 5 students for data for 5 students. So we have data for 5 students. The Excel is now changed. ठीक है, वो अब ये डेटा नहीं रहा है, डेटा चेंज हो चुका है. ठीक है, लेट्स ट्राई टू रीड दैट डेटा. सो अगेन पहले तो हम यूज करेंगे फंक्शन रीड अंडरस्कोर एक्सेल. ठीक है, सो जो हम डेटा रीड करते हैं इट विल बी डन बाय व्हाट, बाय द फंक्शन रीड अंडरस्कोर एक्सेल. ठीक है, एंड वी विल गिव इट द फाइल नेम विद द पाथ. अब क्योंकि जो पाथ है हमारा वो सेम है एज दैट ऑफ द जुपिटर नोटबुक फाइल, क्योंकि दोनों ही फाइल मेरी डेस्कटॉप पे हैं, सो आई डोंट हैव टू गिव इट स्पेसिफिक पाथ. अगर आपका जो अगर आपकी जो डेटा फाइल है और जो एक्सेल फाइल है, ठीक है, या सॉरी जो डेटा फाइल है आपकी एक्सेल फॉर्मेट में और जो आपकी जुपिटर नोटबुक की फाइल है जहां पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, दे आर एट डिफरेंट लोकेशंस. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोकेशन देनी पड़ेगी उस एक्सेल फाइल की जिसको आप रीड कराना चाह रहे हैं. ठीक है, फुल पाथ आना चाहिए उसका अलोंग विद द नेम एंड एक्सटेंशन. अगर आप पाथ नहीं देते हैं, so what it will do is it will try to search the file only in the folder in which this Jupyter Notebook file is present. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. इफ यू डोंट गिव द फाइल एड्रेस, ठीक है, सो what this Python will do is it will try to search that file name only in the folder in which this Jupyter Notebook file is present. ठीक है, सो लकीली डेस्कटॉप पे मेरी दोनों फाइल्स हैं. मेरी जुपिटर नोटबुक फाइल भी डेस्कटॉप पे है और मेरी एक्सेल की फाइल भी डेस्कटॉप पे है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव इट द फाइल नेम विच इज डॉट आउटपुट डॉट xlsx. तो ये अभी रीड तो कर लेगा, लेट मी एग्जीक्यूट दैट. तो इसने रीड करके इसने मेरे को दे भी दिया. सो इंडिसेस आर नाउ चेंज टू स्टूडेंट 1 2 3 4 5. जो ये सब्जेक्ट्स थे दैट आर केमिस्ट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सर ये एक्सेल सेव कहाँ हुई होगी? ओके, तो अगर आप एक्सेल में चेंज कर रहे हैं, तो अभी देखो मैंने क्या किया था, लेट मी टेल यू. तो मैंने क्या किया था, पहले मैंने कुछ डेटा क्रिएट करा विच लुक्ड लाइक दिस. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, उसको एक्सेल आउटपुट XLSX में मैंने इसको सेव कर दिया. ठीक है, तो ये जो डेटा था ऊपर वाला 3 स्टूडेंट्स का डेटा, वो 3 स्टूडेंट्स का डेटा एक्सेल में चला गया. फिर मैंने क्या किया, उस एक्सेल फाइल में कुछ चेंजेस करे. तो अभी जो चेंजेस हो रहे हैं दैट आर ओनली लिमिटेड टू व्हाट, दे आर ओनली लिमिटेड टू दैट फाइल
आउटपुट वाली फाइल एक्सेल आउटपुट डॉट एक्सएलएस एक्स, वो अभी डेटा फ्रेम में नहीं आया है, वो हमने हमने जुपिटर नोटबुक या पाइथन में हमने लोड नहीं करा है, ठीक है। तो वंस दोस चेंजेस वर मेड एंड द फाइल वाज सेव्ड, हमने क्या किया, हमने फिर एक फंक्शन यूज किया टू रीड द एक्सेल फाइल, ठीक है। हमने फिर फंक्शन यूज किया टू रीड द एक्सेल फाइल, और वो हमने फाइल का नेम दे दिया, ठीक है। तो अभी बस ये केवल रीड करके दिखा रहा है, बट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू save it to some variable, let's say marks, ठीक है। तो marks equals to this, marks में सेव हो चुका है, let's try to um, return marks, तो आपका marks आ गया, ठीक है। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा, देखो, डेटा फ्रेम क्रिएट करना, तो हमने देखा कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। देन वी सॉ हाउ टू राइट द डेटा, ठीक है। देन वी सॉ हाउ टू रीड द डेटा, writing the data to an Excel sheet and reading the data from an Excel sheet, ठीक है। अच्छा, राइट, लेट्स क्रिएट, ओके, इसको हम फिर से क्रिएट करते हैं, लेट्स कॉपी द स्टेटमेंट। ओके, सो देयर इज अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग दिस डेटा फ्रेम। तो इसमें क्या होता है, जो अभी हमने, ये तो समझ में आ गया, जो स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री एंड सो ऑन लिखे हुए हैं, लेट्स ट्राई टू राइट इट इन दैट फॉर्मेट, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, ओके। सो दैट्स द नेम ऑफ द रोज, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। ऐसे ही सेम वे में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिफाइन, अब जो ऊपर जो नेम्स होते हैं जैसे पी एच वाई, सी एच ई एम एंड मैथ, तो इनको हम कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो अब कॉलम को भी डिफाइन करने का तरीका है, लाइक वी इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस मैनर कि पहले हम लिख रहे हैं फिजिक्स और फिर हम बोल रहे हैं फिजिक्स के मार्क्स, फिर हमने बोला केमिस्ट्री और फिर बोला केमिस्ट्री के मार्क्स, मैथ्स और मैथ्स के मार्क्स, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वी राइट COLUMN, कॉलम हमने बोला, विच इज इक्वल टू से, अगेन वही, PHYCHEMMATH, एक और दे देते हैं BIO, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने 4 एलिमेंट्स दे दिए हैं, ठीक है, इसको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड बायो। नाउ अब मैंने, क्योंकि 4 इंडिसेस, 4 कॉलम्स इनको दे दिए हैं, तो हर में 4 वैल्यूज भी आनी चाहिए, और मैंने नीचे क्योंकि कॉलम्स दे चुका हूँ, तो मैं यहाँ से केमिस्ट्री, मैथ्स और ये सब को हटा दूंगा, ठीक है। और लेट्स से द फर्स्ट स्टूडेंट, ये, इसको बायो पसंद नहीं थी तो इसने कुछ नहीं किया। सेकंड स्टूडेंट को भी बायो पसंद नहीं थी, बट थर्ड स्टूडेंट ने बायो ली है, मैथ्स और बायो ले लिया है, तो इसके आ गए, अच्छे मार्क्स आ गए। सेकंड स्टूडेंट को कर देते हैं बायो वाला, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ रख देते हैं, लेट्स सी इफ दिस फंक्शंस। ओके, नहीं ले रहा है, ये डेटा नहीं ले रहा, तो लेट्स इसको नील देना है हमें, ठीक है। लेट्स नॉट डू दिस थिंग हियर, लेट्स डू दिस इन एक्सेल, क्योंकि यहाँ पे तो वो चेक करता है, तो लेट्स नॉट डू दैट हियर, लेट्स ट्राई दैट समवेयर एल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इशू दे रहा है। तो अरे अब क्या दिक्कत है, कॉलम, अच्छा सॉरी, यहाँ पे फुल स्टॉप आ चुका है, लेट्स, मे बी फिर ये दिक्कत ना है, नहीं वो दिक्कत अभी भी आ रही है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू रिमूव दिस एज वेल एंड लेट्स रिमूव बायो, ठीक है। अरे यार अब क्या, 90, इसमें दिक्कत है कुछ, तो इसमें क्या दिक्कत है, 3 कॉलम्स दी हैं, 3 रोज दी हैं, दिस इज सेइंग व्हाट, दिस इज सेइंग कि अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ये पूरा एक कंबाइंड डेटा है, इसको ऐसे ले लेते हैं, अभी भी दिक्कत आ रही है,
लेट मी रिमूव द ब्रेसेस। ओके ठीक है, डिक्शनरी फॉर्मेट में नहीं आ रहा है इसलिए। कॉलम, द गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कॉलम, कॉलम नहीं होता, कॉलम्स होगा, इट हैज टू कम विद एस, सो कॉलम्स। ओके, या फाइनली इट इज डन। तो एक चीज आप देखो, यहाँ पे क्या है कि व्हेन द डेटा इज इन द फॉर्मेट फिजिक्स कोलन समथिंग, केमिस्ट्री कोलन समथिंग, मैथ्स कोलन समथिंग, तो वो डिक्शनरी फॉर्मेट होता है ये, ठीक है। ठीक है, नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, हमें केवल डेटा चाहिए था, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, जिसमें जो लिस्ट ऑफ लिस्ट क्या बता रहे हैं, डिफरेंट कॉलम की वैल्यूज बता रही हैं ये, ठीक है। ये कॉलम नेम्स हो गए और ये इंडिसेस हो गए, ठीक है। तो दिस इज क्रिएटेड, लेट्स सी हाउ द डेटा लुक्स लाइक नाउ। जस्ट अ सेकंड। या, तो डेटा हमारा अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू राइट ओवरराइट दिस डेटा अगेन टू दिस, ठीक है। तो मैं इसको फिर से रन कर दूंगा, डेटा ऑलरेडी सेट है, तो इसको फिर से रन करता हूं मैं, ठीक है। मैंने इसको रन करा दिया है। तो अब जो मैं एक्सेल शीट खोलूंगा वो अभी करंट वाला डेटा दिखाएगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये था। now let's create another student, no, let's not create another student, let's create another subject, ठीक है। बायो दे दिया मैंने, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने बोला कि फर्स्ट स्टूडेंट ने बायो नहीं लिया, सेकंड स्टूडेंट ने मैथ नहीं लिया, और थर्ड स्टूडेंट ने क्या किया, बायो और मैथ्स दोनों लिए, दोनों में बराबर मार्क्स लेकर आया, ठीक है। सो दैट्स द केस नाउ, लेट्स ट्राई टू सेव दिस। मैंने इसको सेव कर दिया, इसको बंद कर देता हूँ, एंड लेट मी गो बैक टू द प्रोग्राम, लेट मी नाउ रीड द डेटा, ठीक है। और इसको अब मार्क्स में सेव करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ मार्क्स अंडरस्कोर से न्यू में, ठीक है। तो मार्क्स अंडरस्कोर न्यू, अब या लेट मी नॉट राइट इट हियर, लेट इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको चेंज नहीं करता। लेट मी स्क्रॉल डाउन यहाँ पे, ओके। तो मार्क्स अंडरस्कोर विद बायो इक्वल्स टू, पांडास का फंक्शन यूज करेंगे हम, रीड अंडरस्कोर एक्सेल, ठीक है। और हमारी फाइल का नेम क्या है, एक्सेल अंडरस्कोर आउटपुट डॉट एक्सएलएस एक्स, ठीक है। मार्क्स विद बायो में आ चुका है, मार्क्स विद बायो में हम प्रिंट करा लेते हैं। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्या हुआ यहाँ पे। तो जो एम्प्टी वैल्यू थी वो क्या आ गई, नैन वैल्यू आ गई। नैन इज अ कीवर्ड जो हम यूज करते हैं मतलब डेटा इज मिसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गई, नैन वैल्यू आ गई है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। now let's try to write this data again, जो marks dot इसमें आया है, इसको फिर से हम राइट कराते हैं इन certain in a different excel, ठीक है। तो मैं राइटर वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज, कॉपी किया, मैं नीचे लेकर आया, पेस्ट किया, मैं आउटपुट मार्क्स कर देता हूँ इसको, मार्क्स, ठीक है। मार्क्स में इसको राइट कराते हैं, डेटा को राइट, सॉरी नॉट डेटा, सॉरी, इट हैज टू बी मार्क्स अंडरस्कोर विद बायो, ओके। अब मैं राइट करा दिया है, एक नई फाइल आ चुकी होगी, ये रिमार्क्स की फाइल आ चुकी है, ठीक है। तो नैन इज कंसिडर्ड एज एम्प्टी, ये देखिए अब यहाँ पे जो राइट हुई है एक्सेल फाइल, तो उसमें नैन को कंसीडर किया है एज एम्प्टी सेल, ठीक है। सो सर हम ये जुपिटर में नैन डाल के भी ट्राई कर सकते हैं, या लेट्स डू दैट एंड सी इफ दिस वर्क्स। um let's go back to what data was। इसमें एक काम करते हैं, लेट मी क्रिएट दिस डेटा, डेटा को हम करते हैं यहाँ पे, जो अभी समझते हैं कि नैन एन ए एन
आई एम नॉट श्योर इफ दिस विल वर्क। तो डेटा मैंने क्रिएट कर लिया है, नैन इज नॉट डिफाइंड। नैन को अगर मैं फिर इसमें रखूंगा तो दिक्कत दे जाएगा, वो तो स्ट्रिंग हो जाएगा, और स्ट्रिंग रखता हूं मैं तो वो स्ट्रिंग वैल्यू ही सेव कर देगा। सो आई डोंट थिंक दैट्स द वे दिस इज टू बी डन। तो मैं इसको एक्सेल को बंद करता हूं पहले, और मैं डेटा को राइट कराता हूं। तो नहीं, मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, नैन वैसे नहीं आएगा। नैन बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, तो ये देखिए नैन 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 वैल्यू आ गई है। तो अगर हम नैन इंटेंशनली डालते हैं तो नैन वैल्यू आ जाएगी, विच इज ओके, क्योंकि जब हम एक्सेल भी लिखते हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पे निल, निल लिख देते हैं या नैन लिख देते हैं, और फिर बाद में पता कर लेते हैं कि अगर नैन है दैट मीन्स इट इज जीरो। ठीक है, तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है, और ऐसे ही हमें दिख रहा है उसमें भी, एक्सेल में भी। ठीक है, लेट्स क्लोज दिस, लेट्स सेव इट। ठीक है, नाउ व्हाट शुड वी डू? ओके, सो एक और चीज हम टेस्ट करते हैं, व्हाट इफ वी वांट टू हैव मल्टीपल इंडेक्स फॉर, या सेम इंडेक्स फॉर मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, सपोज कि स्टूडेंट वन के मार्क्स, लेट मी शो यू हाउ। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स लिस्ट है, लेट्स से ऑफ दिस फॉर्मेट। एक्सेल खोलते हैं, लेट्स से इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो मुझे सपोज क्रिएट करना है डेटा, आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट अ डेटा। लेट्स से दिस इज ओके, दिस इज रैंडम कर लेते हैं, चलो ए बी एंड सी। इसको जूम इन कर लेगा थोड़ा सा, या सो आई मर्ज दिस इन सेंटर विद डी, एंड इसको बीच में ले आते हैं, एंड दिस इज से एफ। ठीक है, दिस इज वन टू थ्री फोर, और सीक्वेंस में रखते हैं इसको, वन टू थ्री, थ्री फोर फाइव, एंड फाइव सिक्स सेवन। सपोज मुझे ये करना है। ठीक है, नाउ सी, यहाँ पे जो इंडेक्स नेम है दैट इज कॉमन फॉर दीज टू। ठीक है, या ये सपोज ये जो कॉलम है दैट इज कॉमन फॉर दीज टू, इसको ही बोल देते हैं, लेट्स से दिस इज समथिंग कॉल एज एक्स, दिस इज समथिंग एक्स। ठीक है, तो अगर इसको हमें करना है, सपोज इस टाइप का हमें डेटा बनाना है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, सो विल फोकस ऑन दैट नाउ। सो आपको समझ में आया करना क्या चाह रहे हैं? तो ऐसे अगर हमें दो इंडेक्स का, दो रोज का सेम इंडेक्स चाहिए डी, ठीक है, तो वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो वी विल डू इन दिस मैनर कि पहले तो वही डेटा क्रिएट करेंगे, तो डेटा डी ए टी कर देता हूँ इस बार, इज इक्वल टू पांडास का डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, उसको मैं पहले दे दूंगा कि कॉलम नेम्स क्या थे मेरे, ए बी सी थे। ठीक है, तो कॉलम नेम मेरे ए बी सी हैं, और मेरा डेटा क्या है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, थ्री फोर फाइव एंड फाइव सिक्स सेवन, क्योंकि जो डेटा है वो कॉलम्स में ही आता है। तो मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ लिस्ट बना दी पहले। तो पहला हो गया मेरा वन टू थ्री, दूसरा मेरा डेटा हो गया, दूसरा डेटा कॉलम हो गया थ्री फोर फाइव, एंड तीसरा था मेरा फाइव सिक्स सेवन, या फाइव सिक्स सेवन, फाइव सिक्स सेवन। तो ये तो मेरा डेटा हो गया कॉलम्स में। ठीक है, नीचे आता हूँ, उसके बाद मुझे डिफाइन करने, मुझे ये भी पता है कि अभी दिक्कत इसमें भी नहीं आएगी, क्योंकि कॉलम नेम जो है मेरे वो क्या है, कॉलम नेम जो है मेरे वो क्या कहते हैं इसको, ए एंड बी हैं। ठीक है, तो मेरे ए कॉलम्स जो है मेरे, कॉलम्स इक्वल्स टू क्या हो गए मेरे, ए एंड बी हो गए। तो मैंने बता दिया इसको, ए एंड बी। ठीक है, तो मेरे कॉलम नेम भी सॉर्ट हो गए अभी तक। अब मुझे इसको पहले देख लेते हैं एक बार, और डेटा को प्रिंट करा लेते हैं, डेट को कि ओके, सो देयर इज सम इशू, कॉलम्स में क्या दिक्कत कर दी मैंने, क्या बोल रहा है ये?
2 column, अच्छा 2 columns are passed but there are 3. Okay, so सर कॉलम नेम सी भी होना C चाहिए। भी होना चाहिए, राइट। तो सी भी लगा दिया हमने। तो इतना तो हमारा क्रिएट हो गया, बट अभी इंडेक्स क्या है, हमें फर्स्ट 2 रोज के लिए हमें इंडेक्स हमें सेम चाहिए और सेकंड थर्ड वाले के लिए डिफरेंट इंडेक्स चाहिए। तो क्या करूंगा, आई विल मेक यूज ऑफ समथिंग नोन एज मल्टी इंडेक्स, ठीक है। सो पी डॉट, जो हमारा इंडेक्स है, तो हम इंडेक्स कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे इंडेक्स यूजिंग अ स्पेशल फंक्शन जो कंबाइन करने के लिए, मर्ज करने के काम आता है, ठीक है। तो मर्ज करने के काम आने के लिए क्या हम यूज करेंगे, पांडास का मल्टी, मल्टी का कैपिटल इंडेक्स, ठीक है। एंड विल टेक इट फ्रॉम, देखो उसमें हमारे पास ऑप्शन है, एरे है, प्रोडक्ट है या टपल है। सो लेट्स से हमारे पास टपल से हम ले लेंगे, हम एरे क्रिएट नहीं करेंगे। तो फ्रॉम टपल, अब इसको हम दे देंगे टपल, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर टपल आ जाएगा। तो पहले हम देंगे डेटा इसको। तो हमारा जो डेटा है, लेट्स से पहले वाले के लिए हमारा हो गया, फर्स्ट वाले के लिए डी, सेकंड वाले के लिए डी, हमने क्या यूज किया था, डी यूज किया था बट कैप्स में था वो। तो कैप्स में डी, कैप्स में डी, एंड दो डी थे और फाइनली हमारा एक था एफ। तो फाइनली हमारा हो गया एफ, ठीक है। और इसका जो हेड था, इसका हेड जो है दैट हैज द वैल्यू एक्स। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नेम्स दे देंगे, नेम दे देंगे इज इक्वल टू इसके अंदर एक्स। लेट्स सी इफ, ओके देयर इज एन इशू, ओके कॉमा मिसिंग है यहाँ पे, इसके बाद कॉमा होना चाहिए था कॉलम्स के बाद, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे आ गया, बट ये सेम क्यों आया है, फायदा तो नहीं हुआ ये। दिस डिड नॉट मर्ज, वाई सो। इसको एक सिंगल में लेके देखें, but that will be an issue. Just a second, इसको हम लिंक कैसे कराएंगे, लेट्स ट्राई टू लिंक दिस। इसको एक काम करते हैं, लेट मी एलिमिनेट, अच्छा जो फर्स्ट कॉलम है उसको एलिमिनेट करता हूँ। लेट मी लिंक दिस विद 1, लेट मी लिंक दिस विद 2, let me link this with 3, और इसके बाद में इसको नेम्स देते हैं x कॉमा जो इसके ऊपर था a। ओके शुड दिस वर्क नाउ, और मैं इसके फर्स्ट एलिमेंट्स को हटा देता हूँ, और इसकी में भी a को हटा देता हूँ। ओके सो नाउ दैट हैपेंड। तो मुझे बेसिकली पूरी क्रिएट करनी पड़ेगी वैसे ही। ओके लेट्स डू दैट, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, नहीं 1 कॉमा 1 2 3, 2 3 4। सो द डेटा वाज 1, टी के साथ 1 एंड 2 जुड़े थे, मुझे क्या जोड़ने हैं 1 एंड 2, ये तो ठीक है। सेकंड डेटा गलत क्यों आया, 2 3 2 4 6 आ रहा है, 2 4 6 ऐसे आ रहा है यहाँ पे। ओके सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट इन दैट मैनर। लेट मी रिमूव दिस। तो बेसिकली मुझे अगर मल्टीपल वैसे कंबाइन करने वाला करना पड़ेगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ डायरेक्टली, 1 कॉमा इसका क्या था, 1 2 3
3 4 5 एंड 5 6 7। ओके, तो 1 जोड़ा एंड एक और करें तो देखिए क्या आता है, 2 इसके साथ जोड़ते हैं, लेट्स से 3 इसके साथ जोड़ते हैं 4। सो दैट इज एन इशू नाउ बिकॉज मल्टी इंडेक्स में लिस्ट, अच्छा वो कुछ गड़बड़ हो गई है। लेट मी ऐड बी ऑल्सो यहाँ पे, let me add b and see what happens. So yeah, now it is working properly. 1 2 3 2 3 की जगह हमारा क्या था पहले, 3 4 5 था बस। So let's add, एक सेकेंड, 3 4 and 5 और इसके साथ में जो लास्ट वाला था वो क्या था, 5 6 7 5 6 and 7। okay, so I have to add another column name as well। तो इसका कॉलम नेम हमने दे दिया C। ठीक है, तो जैसा था वैसा हो गया। एक सेकंड बस। ठीक है, तो अगर हमें मल्टीपल इंडेक्स हमें लेने हैं तो ये बेटर फॉर्म में आ चुका जैसा हमें चाहिए था। लेट्स ट्राई टू सी अगर इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वैसे फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो लेट्स ट्राई टू राइट इन check.xlsx and instead of data we'll write dat and let's try to run this। okay, check नाम का ये एक्सेल हमारे पास आ चुकी है। लेट्स ओपन दिस एंड सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो वैसा बिल्कुल हमें क्रिएट हो गया जैसा कि हमें चाहिए था। ठीक है, डेटा तो ये क्रिएट हो गया, बट इसमें अभी ये जो है इस, ठीक है, तो अभी पहले ये जो मैंने अभी बताया उसमें किसी को डाउट हो तो पहले यहाँ तक पूछ लो आप। सर इफ यूज डेटा डॉट मर्ज, मर्ज कर सकते हैं। मर्ज बेसिकली रोज के लिए था, रोज एंड कॉलम्स को, लाइक देयर आर मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल रोज फ्रॉम डिफरेंट शीट्स या सेम शीट, तो उसके लिए हम मर्ज यूज करते हैं। वो जो लेफ्ट में जोड़ना है, राइट में जोड़ना है, इनर इनर जॉइंट करना है, आउटर जॉइंट करना है। So that happens when there are two data frames या two different Excel files या two different sheets। Sir error आ रही है। What's the error? आपको क्या error आ रहा है मानवीन? Okay, let's go back to certain data। Okay, let's copy this again। Let's go back down here। Paste this, run this। तो हमारे पास डेटा वापस से आ चुका है। ठीक है, now let's try to see more functions जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि इस डेटा फ्रेम, अगर हम लेन निकाल के देखते हैं इस डेटा फ्रेम का तो ये क्या देता है। तो डेटा का LTA, ठीक है, लेट मी ट्राई टू चेंज समथिंग ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 100 45 93 data is not changed। I have to add another index as well। 13 14 या इसको करते हैं student 1 student 2 student 3 student 4। ठीक है, डेटा मॉडिफाई हो चुका है। लेन देखते हैं अब क्या है। अब मुझे बताइए बेसिकली क्या बता रहा है आपको, अगर लेन डेटा हम कर रहे हैं तो लेन क्या बता रहा है आपको। सर कॉलम। तो ठीक है, ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ रोज, नॉट कॉलम्स। देखो इसको डेटा को मैं प्रिंट भी कराता हूँ। डेटा
ठीक है, इसको मैं नीचे जाके इसको भी प्रिंट करा देता हूँ एंड इसको रिटर्न करवा देता हूँ। तो देखो अब बताओ क्या बता रहा है, S1 S2 S3 S4 हाँ तो सर, इंडेक्स रो है, बता रहा है। ठीक है। यस सर, रो। हाँ तो नंबर ऑफ रोज बताता है ये, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी कि दिस, सो डेटा का लेट्स से केम, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ बताओ, अभी हमने क्या किया, ये काइंड ऑफ हमने इंडेक्सिंग करी है। और इंडेक्सिंग यहाँ पे हम किस हिसाब से कर रहे हैं, इंडेक्सिंग हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कॉलम नेम। Now let me do something else. Data, is that possible? Is the same thing possible when we say choose S1? तो इसने क्या बोला, की एरर आ गया S1 का, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको। तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग हो रही है वो किस हिसाब से हो रही है, वो कॉलम नेम के हिसाब से हो रही है, ठीक है। वो किसके हिसाब से हो रही है, कॉलम नेम के हिसाब से हो रही है। सो वी विल ओनली एक्सेस द डेटा फ्रेम जिसका नाम यहाँ पे अभी डेटा है बाय द कॉलम नेम, वरना वो क्या दे देगा, की एरर दे देगा। इट विल से कि इस नाम का कॉलम मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है। नाउ इसके अंदर देखो फंक्शंस कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास, अच्छा अभी बता नहीं रहा है, ओके एनीवे। सो डेटा में हमने पहले एक क्या कहते हैं कॉलम को एक्सेस किया है जिसका नाम क्या है, अभी केम, केम वाले को एक्सेस कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, ठीक है। तो अब वैल्यू अंडरस्कोर काउंट क्या करता है, तो पहले तो लेट मी लाइक राइट इट ऑन अ डिफरेंट, इसको प्रिंट कराता चलता हूँ एक एक करके ताकि आपको नोट रहे। तो व्हाट दिस डज इज, दिस इज टू एक्सेस अ सर्टेन कॉलम विद कॉलम नेम। तो ये जो भी हम प्रिंट के अंदर जो लिखा हुआ है उससे आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। लेट मी एक्सेस समथिंग विच लाइक लेट मी एक्सेस द फिजिक्स कॉलम, तो ये मेरी फिजिक्स की कॉलम हो गई। उसमें देखो बता भी रहा है कि जो नेम है वो कैसा है, फिजिक्स है, एंड डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है 64 बिट का, ठीक है। ऐसी मैथ, ठीक है। लेट्स ट्राई बायो नाउ, विच डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, विच डू नॉट एग्जिस्ट, या हो सकता है वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो। सो इट विल गिव यू अ की एरर कि इस टाइप की इंडेक्स की एग्जिस्ट नहीं करती है। सो क्या अगर आपके पास की एरर आता है दैट मीन्स जो आपने की डाली है अंदर दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने लिख दिया मैथ, गलती से मैथ्स कर दिया, तो भी इट विल गिव यू द सेम की एरर। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो कॉलम का नेम है दैट इज सेम एज दैट इन द डेटा फ्रेम, ठीक है। तो हमने पहले अभी क्या देखा, अभी हमने एक्सेस करना देखा कि क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम को। लेट्स ट्राई टू चेंज द डेटा, और जो मैथ के मार्क्स हैं, मैथ के मार्क्स में करता हूँ 95 95 93 एंड 77, ठीक है। इसको वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको भी चलो मैं कर लेता हूँ एग्जीक्यूट ताकि दिखे यहाँ पे मैथ के मार्क्स मेरे क्या है, 95 95 77 93। अब मैं क्या करूंगा, आई विल मेक यूज ऑफ अनदर फंक्शन डेटा अंडरस्कोर मैथ के अंदर। तो ये तो हमारा हो गया कॉलम, यहां तक हो गया कॉलम। अब कॉलम के अंदर ये कॉलम का, तो वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, तो अब ये फंक्शन हमें क्या कर रहा है, ये देखो, लेट मी हाइड दिस वन, ठीक है, और बस ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आया क्या कर रहा है, दिस इज ग्रुपिंग डेटा। पहले तो ग्रुप करता है डेटा को, काउंट करता है उसमें कितने हैं बाय द वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एनालाइज करता है कि इस कॉलम में, जिस कॉलम को आप स्टडी कर रहे हो उस कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। तो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कॉलम है जो 95 77 एंड 93 आर द डिफरेंट यूनिक वैल्यूज दैट आर प्रेजेंट इन दैट कॉलम। सो सी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैथ्स के अंदर क्या था,
मैथ के अंदर 95, 95, 77, 93 थी, तो तीन यूनिक वैल्यूज है इसमें, 95, 77 एंड 93। तो उसने मुझे क्या बता दिया कि 95 तो दो है, 77 एक ही है और 93 एक ही है। तो वैल्यू काउंट्स क्या करता है आपके लिए? इट टेल्स यू कि कितनी यूनिक वैल्यूज हैं और कितनी वैल्यूज रिपीटेड हैं। तो इट विल गिव यू द वैल्यू एंड इट विल टेल यू कि वो कितनी बार अकर किया है इन दैट कॉलम। ठीक है, सो इसी से रिलेटेड एक और है फंक्शन आपके पास। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्सेस अ कॉलम अगेंस्ट से फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स सॉरी मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज हैं। नो व्हाट इफ वी वांट ओनली यूनिक वैल्यूज, सो n यूनिक। तो उसने मेरे को बताया, तो ये बता रहा है n इज फॉर नंबर एंड यूनिक मतलब यूनिक वैल्यूज। तो ये जो मैं इसको सेकंड वाली स्टेटमेंट को हाइड करता हूँ टू शो कि थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट करवा रही है आपसे। सो ये क्या कर रहा है? इट इज टेलिंग यू कि मैथ नाम के कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं आपके पास, मैथ वाले कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं आपके पास। ठीक है, सो इट गिव्स अस 3, और 3 है भी 95, 77 एंड 93। ठीक है, let me comment out this and दिस इज, so basically हम ये एनालिसिस कर रहे हैं डेटा के ऊपर। तो अब जैसे डेटा को हम करते हैं, अब ट्राई टू डिस्क्राइब दिस एंड सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा? डिस्क्रिप्शन दे देगा फॉर ईच कॉलम। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखो, तो ये सारा काम कर दिया इसने देखो। अब इसने ये जो किया है, तो अगेन देखो इसका पहले डेटा टाइप देखते हैं। इसका टाइप क्या है देखो आप पहले। टाइप इसका है अगेन डेटा फ्रेम ही है। तो आपने ये जो डेटा नाम का डेटा फ्रेम, ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है, जब हम डिस्क्राइब फंक्शन यूज करते हैं तो अ न्यू डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड, अ न्यू डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड। लेट्स सी, इसको हम बोल देते हैं, लेट्स कट दिस फ्रॉम हेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं एनालिसिस इक्वल्स टू दिस, और टाइप पता करते हैं एनालिसिस का, तो और हम प्रिंट कर देते हैं एनालिसिस को। ठीक है, इसको भी प्रिंट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, सो इट्स अ डेटा फ्रेम, और वो डेटा फ्रेम क्या है? वो ये रहा डेटा फ्रेम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या क्या कर रहा है ये? तो इट इज प्रोवाइडिंग एनालिसिस फॉर ईच कॉलम। तो देखो जो फर्स्ट रो है, द फर्स्ट रो इज टेलिंग कि कितनी काउंट है, मतलब हर कॉलम में, केमिस्ट्री कॉलम में कितनी काउंट है, मैथ कॉलम में कितनी काउंट है, एंड फिजिक्स कॉलम में कितनी काउंट है, विच आर 4 ईच। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं देयर आर 4 स्टूडेंट्स, तो 4 काउंट हो गई। Then it is giving you the mean marks of chemistry for the class, mean marks of math and mean marks of physics for the class. Then it is giving STD. STD क्या represent करेगा बताओ? What is STD? स्टैंडर्ड डेविएशन। Yes, standard deviation हो गया। Then minimum क्या कहते हैं मार्क्स हो गए, और आपका ही मैक्सिमम मार्क्स हो गए। ये 25, 50 और 75% मतलब क्या हुआ? बताइए। टोटल मार्क्स का 25% या टोटल मार्क्स का 50% ऐसे से। टोटल मार्क्स 100 है, उसका 25% तो 25 ही रहेगा। नहीं सर, जो हमें डाटा दिया है ना उसके अकॉर्डिंग। ओके, डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो एक काम करते हैं, डेटा दिया है तो 25% के सम का होगा, कैसा होगा? मैक्सिमम का होगा। बताइए। तो केमिस्ट्री के जो मार्क्स है तो उसका उसका 25% निकलेगा, मतलब सभी का ऐड करके 25% निकलता है। चलो करके देखते हैं। तो 80, 65, 91 एंड 45 करके देखते हैं। 80, इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर से केमिस्ट्री के मार्क्स को। तो केमिस्ट्री के मार्क्स को मैंने क्या कर दिया यहाँ से
कॉपी कर दिया, ठीक है। मैंने बोला ये मेरे हो गए, ये केमिस्ट्री के मार्क्स हो गए। फिर मैंने बोला कि मुझे सम करना है केमिस्ट्री के मार्क्स का, तो केमिस्ट्री में के मार्क्स का सम हो गया, और आप बोल रहे हैं कि इसका 25% निकालें, तो मल्टीप्लाई बाय 0.25 कर दिया। लेट्स सी व्हाट दैट कम्स, सो दैट इज 70.25। वो तो नहीं है। फिर क्या होगा, फिजिक्स के मार्क्स से सम और फिर 25%, सो नहीं वो तो फिजिक्स के, तो दिस इज फॉर केमिस्ट्री ना, ठीक है। केमिस्ट्री का हमने वो करके देखा जो आप बोल रहे थे कि सम कर दो सारों का और उसका 25% निकाल लो, सो वो तो यार 70.25 आ रहा है, 60 तो नहीं आ रहा। तो बताओ फिर क्या ये, चलो बताता हूँ। ये देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हो ही रहा है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बन रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या थी नंबर्स की। तो आपका एक्स एक्सिस में यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, तो आई गेस दिस इज एक्सप्लेनिंग इट। आप सबको दिख रहा है, ये इमेज दिख रही है? अच्छा, लेट मी गो ऑन टू दिस इमेज। ओके, सो दैट्स द इमेज। इसको जूम आउट करता हूँ मैं थोड़ा सा, इसको बंद करना है। या आई होप द इमेज इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो ये अगर आप ग्राफ नोटिस करें, तो एक्स एक्सिस में यू विल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी द मार्क्स। ये जो मार्क्स हैं एक्स एक्सिस में हमारे आ जाएंगे मार्क्स, वाई एक्सिस में हमारे आएंगे कि कितने बच्चों के वो मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाएंगे, सो ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनेगा, आपको एज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा होगा, तो कुछ जैसे अगर आपके क्लास के मार्क्स भी देखेंगे, ठीक है, तो मीडियन लेट्स से आपका आपका बना कुछ 100 मार्क्स है जो मीडियन पे लाई कर रहे हैं, सो दीज आर मार्क्स जो एक्स एक्सिस पे हैं। बहुत बच्चों के 100 के आसपास आए हैं, बहुत कम बच्चों के लेट्स से 90 प्लस आए हैं, और बहुत कम बच्चों के से 40 बिलो आए हैं। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है आपके क्लास में भी मार्किंग का, ठीक है। तो अब इसमें जो कंप्लीट जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होता है या डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व बनकर आता है, उसको हम डिवाइड करते हैं अबाउट मीडियन। अच्छा, मीडियन क्या होता है, व्हाट इज मीडियन? मिड वैल्यू, एग्जैक्टली। तो अगर आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप सेट कर देते हैं, तो बीच वाली जो वैल्यू होती है दैट इज नोन एज मीडियन। तो मीडियन के अबाउट वी ट्राई टू डिवाइड दिस जोन। ये जो एरिया अंडर द कर्व, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, उसको आप डिवाइड करते हैं इन क्वार्टाइल्स, ठीक है। जो सेक्शन, जो सेगमेंट्स होंगे, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो रिप्रेजेंट करे दैट इज 0%। फर्स्ट क्वार्टाइल या फर्स्ट जो डिवीजन आता है मार्क उसका सेक्शन का, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वार्टाइल या 25%। जो मिड वाली वैल्यू है दैट इज 50% एंड इट इज नोन एज सेकेंड क्वार्टाइल। देन थर्ड डिवीजन आता है एट 75% एंड इज नोन एज थर्ड क्वार्टाइल, एंड फाइनल है 100% और लार्जेस्ट, दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, वी ट्राई टू क्या कहते हैं, राइट द नंबर ऑफ या राइट द वैल्यूज, ठीक है, जो मार्क्स उसने उन्होंने ऑब्टेन करे हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर्स। दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी डू। तो हमने क्या किया, जो मार्क्स आए हैं उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। और फिर हम उसको डिवाइड करते हैं कि पहले 25% मार्क्स कौन से हैं, ये लोएस्ट 25%, या उसके बाद के 25%, फिर उसके बाद के 25%, फिर टॉप 25%। तो ये जो 25-25 के जो डिविजन्स होते हैं, बिकॉज 25%, 100% मार्क्स में से हम 4 ऐसे 25-25% के डिविजन्स कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नेम क्वार्टाइल रिप्रेजेंटिंग 4, ठीक है। तो क्वार्टर, क्वार्टाइल, तो क्वार्टाइल्स हो जाते हैं ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा कितना, 25% पे, सेकंड क्वार्टाइल 50% पे, थर्ड क्वार्टाइल
75% पे, तो यहाँ पे जो आपको 25%, 50%, 75% मिल रहा है एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम मिल रहा है, तो ये क्वार्टाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो सी कहाँ गया ये, थर्ड पे था. सो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज योर मिन, लार्जेस्ट वैल्यू इज योर मैक्स, एंड आपको बता रहा है कि 25% मार्क्स का कट ऑफ क्या है, 50% मार्क्स का कट ऑफ क्या है, कि बिल्कुल मिड वैल्यू क्या है ये, 75% मार्क्स से कट ऑफ क्या है और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है. तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट दीज मीन? ठीक है, अब आपको समझ में आ गया? किसी को डाउट तो देखो, 45 हैज टू बी द लीस्ट वैल्यू, 91 हैज टू बी द मैक्सिमम वैल्यू, एंड ये देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री के मार्क्स से 45 इज द लीस्ट वैल्यू एंड 91 इज द मैक्सिमम वैल्यू. सेम फॉर देखो 77 एंड 95 तो मैच कर रहे होंगे, बट दिस मे बी न्यू फॉर यू कि 25%, 50% और 75% जो निकल कर आता है, जो कैलकुलेट होता है, ठीक है, उसका कट ऑफ निकालने के लिए वो रेंज अपने आप से डिफाइन कर लेता है कि इस ट्रेंड कहाँ क्या रहा होगा, एंड ऑटोमेटिकली दे कैलकुलेट कि 25% कहाँ डालना चाहिए, 50% कहाँ डालना चाहिए, 75% कहाँ डालना चाहिए. इसमें कोई डाउट हो तो आप बताओ. एनी डाउट? अच्छा, किसी को समझ में आया है कि नहीं आया है? सब ऐसे शांत बैठे हैं. ठीक है. सो जो अभी हमने देखा है वो हमने अचीव किया है फ्रॉम द एनालिसिस. सर रिपीट कर दीजिए. ओके. तो देखो अभी वही बता रहा था, अभी हम क्या कर रहे थे. हाँ. तो अभी तो ऐसे शांत क्यों बैठते, पूछा करो ना जब नहीं समझ में आता तो व्हाट वी डिड वाज, सी हमने क्या किया, हमने जो डेटा है, जो हमारे पास डेटा फ्रेम में, अब सपोज आपके मार्क्स की एक्सेल शीट है, लेट मी सी मेरे पास किसी की मार्क्स की एक्सेल शीट हो तो लेट मी डू दैट. ठीक है, तो ये कुछ और प्लेस पर है, लेट मी ट्राई टू कॉपी दिस और मैं लेकर आता हूँ इसको. एम इक्वल्स टू पी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल. ये डेटा आ गया और इसका नाम जो है, आई कॉपी दिस यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. लेट्स सी कुछ इशू आ रहा है. ओके, इशू क्या आ रहा है? ओके, कहाँ गया ये रहा. इसको कर देते हैं डबल कोट्स में, पेस्ट पेस्ट. दिक्कत अभी भी है, इसको अभी भी दिक्कत है. अच्छा सॉरी, सर जो फॉरवर्ड स्लैश लगे आई थिंक वो बैक स्लैश तो नहीं करने. वही मैं देखता हूँ एक बार. या एम, तो ये हमारा एम हो गया. ये मेरे ख्याल से आ गई है इनकी अटेंडेंस. एनीवे, तो ये अटेंडेंस के मार्क्स हैं. लेट मी use the describe function. तो इस पे देर आर 46 कॉलम्स, यहाँ पे इसकी 47 सॉरी रोज, 46, 47, 48, 48 एंड सो ऑन. मीन जो आया है दैट इज 1.5. एक काम करता हूँ मैं, आई चेंज द शीट.
जस्ट अ सेकंड, ये था, लेट मी ओपन दिस ताकि बेटर डेटा मिल पाए। ओके, लेट मी कॉपी दिस and create a new sheet here. Not a publisher document, an Excel sheet. Let me call it M. Paste, not this one. Student record. Copy, paste, Z, paste. Anyway, इसको डिलीट करना, अच्छा हिडन भी है कुछ, इसको डिलीट कर देते हैं। या ओके, बट दैट विल गो देन। ओके, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी यहाँ पे, paste just the values. Yeah, अब हो गया। Let me delete this. Okay, इसको भी 25 होता है। Anyway, इसको मैंने सेव कर लिया, M के नाम से सेम लोकेशन पे है। लेट मी गो टू प्रोग्राम। ओके, बस मैं फाइल का नेम चेंज कर दूंगा, इट इज नाउ कैपिटल M। लेट मी डिस्क्राइब दैट। तो अगेन काउंट हो गए 45, ठीक है। मीन जो आया है इज 23, ठीक है। तो दीज आर मार्क्स आउट ऑफ 25, दीज आर मार्क्स आउट ऑफ 40, ठीक है। तो 6 रोज हमारे, 6 या 6 कॉलम्स है हमारे पास। सो ये पूरा जो मुझे चाहिए था वो मेरे तक पूरा आ चुका है यहाँ पे। तो मार्किंग देखो यहाँ पे ऐसी थी, यहाँ समझना जो क्वार्टाइल बना, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा अगर हम ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक है। इफ वी विल प्लॉट अ ग्राफ फॉर दिस, तो जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था, ये देखो यहाँ पे क्या 50%, 75% और मैक्सिमम जो आया है वो कहाँ पर आया है, वो 25 पे ही आया है। इसका मतलब क्या है, 55%, 75% और मैक्सिमम जो है, या जो पीक आई है, दैट इज वेरी क्लोज टू व्हाट, वेरी क्लोज टू 25, ठीक है। ओके, so let's try to do that. Okay, yeah. तो सेम, तो ये जो जितनी एनालिसिस थी वो हमें यहाँ पे समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपका मीन मार्क्स हो गए सारे, ये आपके स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया आपका सारा, मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, 25%, 50% एंड 75% है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, जितना अभी तक हमने देखा। अगेन जो बाकी जो बेसिक फंक्शंस हैं वो भी कर सकते हैं। बेसिक फंक्शंस कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि m की जो कॉलम है 25 वाला, एक सेकंड, लेट मी सी दैट, एक सेकंड। ओके, सो इट्स इनवैलिड बिकॉज इट इज अ नंबर, ये नहीं बता पा रहा है। ओके, डॉट है, सॉरी। या तो इसने 25 वाले जो मार्क्स थे वो इसने दे दिए हैं मुझे, ठीक है। नाउ कैन आई से परफॉर्म सम ऑफ दिस, तो सम ऑफ मार्क्स भी आ गया मेरा। तो ये कॉलम है जिसका कॉलम नेम है 25, उसका ये सम हो गया, ठीक है। देन मुझे काउंट करना है कि कितने टर्म्स थे, तो ये 45 टर्म्स थे। या मुझे काउंट करना है कि मीडियन क्या था, मिड मोस्ट मार्क्स क्या थे, दैट इज 23, ठीक है। अब मुझे क्वार्टाइल में देखना है, देखो जैसे अगर जो मैंने क्वार्टाइल बताया था, क्वार्टाइल, तो मुझे देखना है से 25 और 75 के बीच में, तो 0.25 कॉमा 0.75। अरे 0.25 क्या बोला इसने, सीरीज हैज नो एट्रीब्यूट क्वार्टाइल।
क्वार्टाइल कर, सॉरी क्वांटाइल कर देते हैं, सो या क्वांटाइल इज पेमेंट। तो 25% और 75% दोनों ही कैसे आए हैं, 23 पे आए हैं। रीजन बीइंग की जो मार्किंग कर रही है दैट इज वेरी क्लोज टू 23, सबके अच्छे मार्क्स आए हैं इसलिए। ठीक है, तो बट अगर आपका ये वेरिड होगा, अगर आप अपने आप से डेटा क्रिएट करने की कोशिश करना, और उसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जो मार्क्स होंगे या जो वैल्यू होगी अगर ज्यादा फैली होगी, तो उसमें यू विल आइडेंटिफाई कि जो 25 और 75% का जो डिस्ट्रीब्यूशन आया है दैट इज फार अवे फ्रॉम ईच अदर, लाइक कोइंसाइड नहीं करेगा। Same way you can find the minimum marks, which is 18. You can find the maximum marks, which is 23. You can find the mean and so on. Mean निकाल सकते हैं कि mean marks कितने आए, so that is 22.44. You can find the variance, which is 2.5, and you can find the standard deviation, which is 1.589. ठीक है, अब यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछो आप। कोई दिक्कत जितना अभी तक हमने किया। ठीक है, सो व्हाट विल डू नाउ, विल एंड दिस सेशन हियर। मैं आपको आपके साथ ये डे 10 की जुपिटर नोटबुक शेयर कर दूंगा, एंड आई विल आल्सो शेयर द पाइथन फाइल with you so that you can execute that easily. What you do now is you try to uh, do everything that we did today, experiment करिए, खेलिए इसके साथ, एंड प्रॉब्लम्स जो है आप शेयर कर सकते हैं कि जो इश्यूज आपको आए हैं इस इन सब में, एंड जस्ट प्ले अलोंग दिस पांडाज लाइब्रेरी। तो आपको और इश्यूज पता चलेंगे और आप हैंडी हो जाओगे फिर डेटा फ्रेम के साथ, और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, सो विल डू दैट सर। 25% सर, 25% मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में 25% फ्रीक्वेंसी पर मार्क्स की वैल्यू क्या है, राइट? नहीं, वी कैन से कि 25 पहले जो टॉप 25% है वो कहाँ पढ़ रहे हैं हमें, या जो नेक्स्ट 25% है वो कहाँ पढ़ रहे हैं हमें। सो इट गिव यू द वैल्यू ऑफ मार्क्स, नॉट द फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी, राइट, फ्रीक्वेंसी पर मार्क्स की वैल्यू, यस, फ्रीक्वेंसी पर मार्क्स की ही वैल्यू है, यस। तो कल का सेशन प्रोजेक्ट वाला रिकॉर्ड हुआ था? नहीं, वी डिड नॉट रिकॉर्ड द लास्ट सेशन। नॉर्मल डिस्कशन से ऐसा कुछ हमने डिस्कशन नहीं किया था, नॉर्मल सा डिस्कशन था इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया था। ओके, तो अगर अभी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल एंड द सेशन। आई विल शेयर द जुपिटर नोटबुक, यू कैन एक्सपेरिमेंट इट, experiment the different functions that were taught today. Okay, so I hope there are no doubts now. We'll end the session now, and see you tomorrow. PDF में ओपन हो रही है आपके में। सो व्हाट यू कैन डू इज लाइक, जैसे जुपिटर नोटबुक को ओपन करने का तरीका ये होता है कि यू लाइक हाउ आई डू। ओके, आई विल टेल यू दैट। तो आइदर यू गो टू सर्च, ठीक है, एंड आप उसमें सर्च करिए जुपिटर ऐप, JUPYTER, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ गया जुपिटर नोटबुक। So you see here this app Jupyter Notebook. When you search it, you open this. क्या हो गया? Anyway, छोड़ो, यहाँ से नहीं करते, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही कर लेते हैं। यू गो ऑन टू कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। नाउ व्हाट यू डू इज यू टाइप जुपिटर नोटबुक, ठीक है, आपने टाइप कर दिया जुपिटर नोटबुक। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी, या सो आई सी हियर कि डे 10 की फाइल मेरी ये रही, दिस इज द फाइल दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ, ठीक है। या मुझे सपोज मेरे को ये डे 8 की फाइल ओपन करनी है, सो ये फाइल ये रही। सो व्हाट आई डू इज आई राइट जुपिटर नोटबुक यहाँ पे, और इस फाइल का पाथ मैं यहाँ पर दे दूंगा। तो शॉर्टकट है पाथ देने का, आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस फाइल यहाँ पे,
आई ड्रैग एंड ड्रॉप दिस फाइल यहाँ पे, तो फाइल का एड्रेस देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा। आई जूम इट इन, तो यहाँ पे देखो आपके पास फाइल का एड्रेस आ चुका है। सो वंस दिस एड्रेस हैज कम, ठीक है, देखो सी कोल यूजर्स डेस्कटॉप पे डेट आई पी वाई एन बी, ये फाइल आ चुकी है। व्हाट आई डू इज आई क्लिक एंटर, आई वेट, एंड आपके ब्राउजर मेट विल आस्क यू कहाँ पे खोलना है। हो सकता है मेरे में गूगल क्रोम पे खुलता है, ठीक है, जस्ट वेट। एक लिंक क्रिएट होगा, ये लिंक क्रिएट हो गया, ये एक लोकल होस्ट पे क्रिएट हो चुका है, एंड द फाइल विल नाउ ओपन इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स। ओके, सो दिस इज डन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना, यू हैव टू टाइप जुपिटर नोटबुक एंड यू हैव टू गिव द फाइल नेम along with its path. Once that is done, click enter, आपके ब्राउजर में आपका क्या कहते हैं जुपिटर नोटबुक खुल जाएगी, ठीक है। Is it clear now? Okay. So we'll end the session now. I'll mail you the document, the Jupyter notebook file right away. Okay.